Hello students, so this is part 5 of the chapter speed, time and distance. Alright, and in this is the last part of this chapter, and in this part we will discuss a little bit concept about boat and stream. Right, boat and stream, the sums that you get in boat and stream. Right, sums related to boat and stream. Now there are few terms related to boat and stream, like you will find speed of boat. We generally take that speed of boat as x. Then you will have speed of stream, or in most cases you will find water, y. Alright, now there is something called downstream, and there is one word, last word called, the final one for this concept is upstream. Now what do you understand by downstream? Okay, I won't go in very much details about this. Just know that when you row your boat with the flow of current, that means towards the direction of flow of current, towards the direction of flow of water, not current, more specific, towards the direction of flow of water. Suppose this is water, right, water body, and you have a boat. All right, this is your boat, this is your water. All right, now if you are rowing this side, right, if you are rowing this side and the flow of water is also this side, what will happen? Your boat will get supported, na? Your boat will get a bit of support from this stream, the speed of stream. Now for example, the speed of your boat, even if this was a normal water, there was no current in it. That means the water, if the water would have been very still, there would have been no movement, then the boat would travel with its own speed, which is your x, isn't it? And if now, since the water is also moving and it has its own speed, which is y, now the speed of, now what happens? Now this will the speed of the boat will get enhanced, it will get supported by this, right, with this flow, with this stream, with the speed of this stream. So what will be this downstream speed? Now what do you, now when this is when this situation arises, then you term it as downstream. All right, so in this case what will happen? X and y will get added, it will get added. All right, now when it is upstream, now downstream, I hope you understood, when the flow of the boat is in direction with the flow of the water, it is known as downstream. Now when it is upstream, it is exactly opposite of that, isn't it? Was the concept of upstream, isn't it? Here your both the speeds get added. In a downstream, what happens? Both will get added because the boat is getting the favor of the direction of water, right? And upstream is ekdam opposite. Suppose your boat is going in this direction and the flow of water is in this direction. That means what will get? The boat will get a bit of friction, right? It is getting opposed by the flow of water. It is getting opposed by the flow of water. So its effective speed will reduce a bit. So what will happen? Whatever the speed of the boat will be, it will get decreased by the speed of this stream. So x minus y. So this is the downstream speed, this is the upstream speed. So this was all about the concept of boat and stream. And now there are few sums related to this we'll solve, and this part will get over. Okay, so student, this is the first question on boat and stream, right? The speed of a boat in still water is 15 km/h and speed of the stream is 5 km/h.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो वी विल डू वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स सी. क्या क्वेश्चन समझिए कि एक बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, अगर पानी ठहरा हुआ है, रुका पानी है, तो उसमें बोट 15 किलोमीटर का स्पीड में जा सकता है. और जब पानी का स्पीड कितना, और नॉर्मली अब पानी का स्पीड कितना बता दिया है, 5 किलोमीटर है. खड़ा हुआ पानी में बोट 15 किलोमीटर का स्पीड में जाएगा, लेकिन पानी का स्पीड भी है, तो अगर टूवर्ड्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, उसका 20 हो जाएगा. और उसका अगेंस्ट में जब जाएगा तो क्या होगा, स्पीड 5 घट जाएगा. सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. सो नाउ अपस्ट्रीम के डिस्टेंस के जाने में, सो डिस्टेंस, ये अपस्ट्रीम का लिख रहे हैं. ऑलराइट, ये हम अपस्ट्रीम का सॉल्व कर रहे हैं. पहला वाला डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर आपको जाना है. ठीक है, अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, है ना. तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है. अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. टाइम्स व्हाट इज, सो स्पीड ऑफ बोट कितना है, स्पीड ऑफ बोट 15, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, 5. राइट. अपस्ट्रीम मतलब होता क्या है, दो आपको मालूम होगा, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा. राइट, आपको दिख रहा होगा कि हाँ डायरेक्टली अपस्ट्रीम मतलब तो अगेंस्ट में जाएगा, खुद का 15 है तो पानी उसको 5 घटा देगा. 10 दिख रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाना होगा कैसे, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर. तो उसका स्पीड क्या हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया उसका, 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया. तो अब हमको क्या चाहिए, फाइंड द टाइम टेकन. देयरफॉर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ मेरा डिस्टेंस कितना है, हमको 40 किलोमीटर पानी के अगेंस्ट में जाना है. तो और हम कितना स्पीड से जा रहे हैं, 10, मेरा 15 खुद का स्पीड था बोट का, लेकिन अगेंस्ट में जा रहे हैं तो 5 स्पीड मेरा पानी मेरा 15 से 5 हटा दिया स्पीड, क्योंकि हम अगेंस्ट में जा रहे हैं. अब तकलीफ़ होगा रो करने में, है ना. तो कितना हो गया, 10. यहाँ पर हम क्यों कन्वर्ट नहीं किए, ये भी मेरा किलोमीटर में है, ये मेरा किलोमीटर पर आवर में ही आया, है ना. तो ये टाइम कितना आएगा, 4 आवर में. सो अपस्ट्रीम जाने में हमको 4 घंटा लगा, है ना. अगेंस्ट में जा रहे 4 घंटा लगा हमको अपस्ट्रीम जाने में. अब हम देखते हैं डाउनस्ट्रीम का, इज़न्ट इट. ये अपस्ट्रीम का हो गया था. चलिए अब डाउनस्ट्रीम का देखते हैं. ये हम क्या, डाउनस्ट्रीम आप फॉलो करते हैं. डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, हम अपना बोट को पानी का फेवर में लेके जा रहे हैं. मतलब जिस तरह से पानी जिस ठहराव में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी अपना बोट लेके जा रहे हैं. तो मेरा स्पीड और थोड़ा बढ़ जाएगा ना, पानी भी थोड़ा ढकेलते हुए, पानी का लहर भी हमको लेते जाएगा ना, और स्पीड से मेरा बोट को. सो अब क्या है डाउनस्ट्रीम का, देखिए हमको डिस्टेंस क्या दिया है, 36 किलोमीटर. हमको 36 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम. अब मेरा ये क्या क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट तो वही है, स्पीड ऑफ बोट 15 है, स्पीड ऑफ वाटर 5 ही है, वो तो कांस्टेंट है ना. तो अब लेकिन मेरा डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा. डाउनस्ट्रीम मतलब मेरा फेवर में है, पानी मेरा फेवर में है, तो हमको मेरा स्पीड बढ़ा देगा पानी. तो बढ़ा रहा है मतलब 15 + 5. ये काइंड ऑफ वही वाला रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है. एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है. आप लोग क्या कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में, इस केस में क्या है, ऑपोजिट है. इसमें डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट में रिलेटिव स्पीड इसका ऑपोजिट आता है. उसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो
घटा देते थे ना, ट्रेन या हुआ या दो आदमी एक दूसरे का पीछे दौड़ रहा है, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा तो घटाते थे। यहाँ पर वो तो फेवर में, अगर पानी भी इधर जा रहा है, मेरा बोट भी इधर जा रहा है, तो हमको और स्पीड में लेके जाएगा। तो ये क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑपोजिट हो जाता है इसमें। और ये रटना नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से हमको समझ में आ जा रहा है, बस जान कर रखिए। डाउन स्ट्रीम, डाउन समझ लीजिए कैसे याद रखेंगे डाउन स्ट्रीम फेवर में, कि मान लीजिए जो वाटरफॉल होता है ना, मान लीजिए वहाँ से कोई नौका गिरेगा तो क्या होगा, पानी का डायरेक्शन से जाएगा तो स्पीड क्या होगा उसका, बढ़ के एकदम स्पीड से गिरेगा ना नीचे। हम लोग स्लाइड भी करते, जो हम लोग कोई पार्क उर्क में जाते, वाटर पार्क में, है ना, जो ऊपर से जाएंगे नीचे में पानी की तरफ, जब कोई राइड वाइड में, तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है ना। आपका बोट जिसमें बैठते हैं वो विद द फ्लो ऑफ वाटर रहता है ना, स्पीड बढ़ जाता है। इसीलिए ये एलिवेशन से आप कभी नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या लगता है, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, पूरा ही घट जाएगा ना। तब टान टान के लेके जाना होगा बॉडी को आपको ऊपर। 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब फेवर, पानी हमको फेवर कर रहा है मेरा बोट का स्पीड को, है ना। तो जोड़ लिए बस। तो अब क्या हो गया, आपका डिस्टेंस मिल गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया आपको। हमको अब इसका टाइम लगेगा। ऑब्वियसली हमको एक चीज़ मालूम है, जो भी हो टाइम तो मेरा बहुत बच जाएगा, क्योंकि फेवर में हमको है, पानी का बहाव मेरा फेवर में है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड 36/20। तो इसको हम काटेंगे, 4 5 ज़ा 4 9 ज़ा, सो 9 5 ज़ा, सो 5 1 ज़ा 5 5 1 4/5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 4/5 आवर्स। अब या तो बस ये आंसर ही छोड़ देने में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, या तो मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर को मिनट में करने के लिए तो 1 घंटा है ही, इसको एग्जैक्ट मिनट में देखना है कितना है, तो आवर को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं, ×60, 5 12 ज़ा 12 4 ज़ा 48। तो 1 घंटा 48 मिनट आपको लगेगा यहाँ से वहाँ 36 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में। बस यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, सो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड ये आपका बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पे, राइट। 7 में इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो सिखाया है बस, इससे बाहर कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं आएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये जितना ये 2 ठो और इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस, उसमें आपका मैक्सिमम सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका कॉन्सेप्ट लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका क्या है। अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब एक नौका क्या है, अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसे बना ले रहे हैं आपका समझने के लिए। अपस्ट्रीम तो पानी ऐसे, ये सपोज पानी बह रहा है, अब मेरा नौका को यहाँ ऐसे करके चढ़ना है, पानी का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, नौका को ऐसे जाना है। अपस्ट्रीम मतलब यही होता है ना कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो हमको हमेशा क्या लेना है, ठीक है, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से सपोज़ यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर जाना है, ये नौका को यहाँ पहुँचना है। तो 24 किलोमीटर दिया है यहाँ का डिस्टेंस, और बोल रहा है कि ये पहुँच जा रहा है कितना, 3 घंटा में पहुँच जा रहा है। सो ये इन्फॉर्मेशन से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ये इसका स्पीड आराम से निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस दिया, टाइम दिया है, स्पीड निकाल लिया है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इक्वल्स टू 24/3, ये 8 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आया है मेरा 8 तो आया है, ये तो स्पीड 8 ही रहने वाला है, लेकिन ये 8 कौन सा स्पीड है, ये नौका का सिर्फ स्पीड है क्या, नौका अपना स्पीड से पहुंच गया है, नहीं। अपस्ट्रीम में क्या होता है, तो अब हम यूज़ करते हैं जो हम आपको एक्स और वाई सिखाए हैं ना। तो अपस्ट्रीम में बेसिकली मेरा क्या क्या स्पीड इसमें इन्वॉल्व है ये क्वेश्चन में। एक तो क्या चीज़ का है, नौका का खुद का स्पीड है, जो वो खुद का स्पीड से चलेगा। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखा हुआ चाहे नहीं लिखा हुआ हो,
स्पीड ऑफ बोट मतलब ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो अपना खुद का स्पीड से, मतलब अभी विदाउट वाटर का सपोर्ट से। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखे या नहीं लिखे, मतलब वही एक ही चीज़ होता है। ये जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमको खोजना है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर खोजना है। और हमको स्ट्रीम का स्पीड बता दिया है। स्ट्रीम मेरा जो बह रहा है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से पानी बह रहा है नीचे, राइट। अब हमको स्पीड ऑफ बोट खोजना है, इजंट इट। तो स्पीड ऑफ बोट हम x मानते हैं, राइट। अब मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, स्ट्रीम कितना दिया है हमको, अगर नहीं दिया रहता है तो हम वही पकड़ के इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्टली दिया है कितना, 4 किलोमीटर से अपोज कर रहा है बोट को, है ना। अपस्ट्रीम में अपोज ही करता है, वो रोकता है उसको, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्पीड आया है 8 किलोमीटर पर आवर, तो अब मेरा अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है। अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड होता क्या है मेरा, स्पीड ऑफ बोट, कितना स्पीड बोट से जाएगा और उसका स्पीड कितना कम कर दे रहा है, पानी 4 कम कर दे रहा है। स्पीड ऑफ ये x स्पीड से चल रहा था अपस्ट्रीम में, राइट, बोट ये अपना खुद का स्पीड से चल रहा था, लेकिन अपस्ट्रीम में जा रहा है, क्या होगा, 4 किलोमीटर स्पीड उसका घटा दिया जाएगा, बोट का घटा दिया जाएगा। कौन घटाएगा, पानी घटा देगा, उसका 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना भी उसका स्पीड था ये 4 क्या कर दिया, उससे घटा दिया, ये घटा दिए। लेकिन फिर भी वो ये घटाने के बाद भी अल्टीमेट स्पीड, वो 3 घंटा में पहुंच रहा था ना, तो अल्टीमेटली कितना स्पीड वो जनरेट कर ले रहा था बोट। ये होने के बाद भी, ये फाइनल ये स्पीड माइनस ये स्पीड होने के बाद भी क्या स्पीड से चला था, क्योंकि 8 किलोमीटर का स्पीड से चला था। अपस्ट्रीम मेरा जो ये जो स्पीड आया है, ये क्या चीज़ का वैल्यू आया है। यहाँ जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आता है तो इंडिविजुअल स्पीड कभी नहीं आता है आपका, ये चैप्टर, ये अलग इस वाला टॉपिक में, बोट एंड स्ट्रिप में। अपस्ट्रीम में गया है तो ये अपस्ट्रीम का स्पीड आता है, डाउनस्ट्रीम वाला मेंशन किया रहेगा तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड आता है ना। तो यहाँ पर मेरा अपस्ट्रीम का स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड होता क्या है ये, और ये होने के बाद मेरा 8 आया था, इजंट इट, 8 किलोमीटर पर आवर वो चला था। 8 किलोमीटर का स्पीड से वो बोट ऊपर का चढ़ाई किया था अपस्ट्रीम में। सो इसमें से तो इसका हमको बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट का कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट बताइए। बोट का पक्का ज़्यादा ही होगा ना, उसका कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन उससे 4 घटा दिया गया है, 4 घटा दिया गया है तब जाके 8 आया है। तो मतलब कितना होगा, ओरिजिनल कितना होगा बोट का, इक्वेशन नहीं भी रहता तो देखिए, कुछ अगर स्पीड था उसका बोट का, उससे उसका 4 घटा, उसका जितना भी स्पीड था वाटर उसका 4 घटा दिया उससे, और तब जाके 8 का स्पीड में आ गया है बोट। मतलब उसका खुद का कितना स्पीड था ओरिजिनल में, 12 होगा ना, है ना। तो अब वही हमको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया होगा, ये माइंड में आप कर लेंगे, अच्छा इसका कुछ स्पीड था, इससे 4 घट गया, 4 घटने के बाद 8 आ रहा है, तो मतलब अगर 4 नहीं घटा होता तो वो क्या चीज़ का स्पीड था, खुद का नौका का स्पीड था, तो 12 हो गया होता। तो ये क्या है, x इक्वल्स टू, इक्वेशन बस सॉल्व कर लेना, 8 है, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 12। तो ओरिजिनली अगर कोई नहीं रहता, अगर प्लेन पानी में ये नौका को चला दिया जाए तो वो 12 का स्पीड से चलेगा, 12 किलोमीटर, 1 घंटा में 12 किलोमीटर वो स्पीड ये नौका चल लेगा अगर विदाउट कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ये आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। सो बस ये आपका जो कॉन्सेप्ट था जितना, इसका हम कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत, इसीलिए हम 5 डिफरेंट पार्ट्स में किए हैं, किस लिए, ताकि आप लोग एकदम तसल्ली से आराम से देखते हुए, जितना बार देखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको हर सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ लॉन्ग आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में भी मिलता है, लॉन्ग आंसर में भी ये आपका आ जाएगा 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, हर एक सेक्शन में एक आपको दिख जाएगा। एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द सेक्शन में एक क्वेश्चन इसका आपको दिखेगा कि दे दिया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट, और ये
बहुत एक बार में ज़्यादा मार्क्स दे के जाएगा, बहुत वेटेज है इस चैप्टर का क्वेश्चन में वहाँ पर, है ना। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके रखिएगा। और अगेन कोई डाउट्स हुआ, ये हुआ, आप मेरा यूट्यूब चैनल में आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं अपना प्रॉब्लम, या तो इमेजेस मेरा जीमेल अकाउंट में भी आप क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं मेरा जीमेल अकाउंट में भी। वहाँ से भी हम वहाँ देख के जितना भी जो हमको लगेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जितना भी डाउट्स हम गैदर करके हम सॉल्व कर पाएंगे, वो सब हम सॉल्यूशन डाउट क्लासेस में हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। चलिए, थैंक यू। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में।